Waiting for important questions for class 10th maths board? You're at the right place because in today's video, I'm going to discuss important questions of chapter number 12, 13, 14 and 15. Important questions that means जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छे से क्लियर करके जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन अटेम्प्ट हायर क्वेश्चंस आल्सो. Hey everyone, I'm Meenu Gega, online mathematics wizard, founder of Meenu's Maths and your tutor. So without wasting time, let's get started and jump into my PC. So let's get started with chapter number 12. Let's start. Before starting, just like the video, and if you have not subscribed, just subscribe the channel because I will be always here with very valuable stuff. So start firstly. Chapter number 12, area related to circle. We are going directly page number that is 225. Take example number 1. That is very important in exercise 12.1. Question number 2, 4. Star it. It's very, very important. And then I go to, these formulas. These are very important for this chapter. You should know area of sector and length of arc. And after that, we will go for exercise 12.2, page number 230, 12.2. जल्दी से अपनी बुक खोल लो, टिक कर लो. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9. इस चैप्टर में मैं आपको इतना बता दूं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, 99% दैट विल बी रिलेटेड विद द डायग्राम. तो डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. And next we go to 10, 11, 13 and 14. Okay. Next we go to the next exercise. Page number 234, example number 6. Star it. It is very important. And next this is 12.3, question number 1. Question number 4, 5, 6. This 6 is very important. And next 8 and 10. These questions are maximum from previous question papers, and these are very important questions that will clear your concepts. Question number 11, then go to 13 star 13 question, 14, 15 and the last question number 16. Star it. It is very, very important. Next I am going to chapter number 13, surface areas and volume. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं कि एग्जाम्स से डरने की कोई नीड नहीं है. जस्ट ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ ना, इनको रिटन प्रैक्टिस करनी है. जस्ट टिक करके छोड़ना नहीं बेटे, इनको रिटन प्रैक्टिस करना. एंड आई प्रॉमिस विद यू कि आपके मार्क्स 100% दे विल बी हायर. एंड If you have not prepared till, और अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है ना मन में, घबराना नहीं है. I'm with you, and if you have any doubt, just write down in comment box. I will definitely solve the questions. I will explain the questions, and I will definitely make video for you. Okay? So go for the important questions. Do its written practice. Okay? Let's get started with chapter number 13. जल्दी से खोलो chapter number 13. क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है डिफिकल्ट नहीं है. फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, फॉर्मूलाज नहीं भूलने हैं. इस साल जो है कॉम्बिनेशंस हैं, दो शेप्स के कॉम्बिनेशंस है, वो ध्यान रखना है कि किस तरह से आपने कॉम्बिनेशन में चलना है. अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूँ ना, कॉम्बिनेशन में जब वॉल्यूम निकालना होता है तो सिंपली हम वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, लेकिन जब सरफेस एरिया की बात होती है ना, तब थोड़ा सा अलर्ट होकर ऐड करना है, क्या किस तरह से क्या यूज करना है. ओके. एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ओके, चलो अब जल्दी से टिक करते हैं. टिक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, देन गो टू एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6. This question is very important. Star it. Question number 6, this medicine capsule. Then it is page number 245, question number 8 and 9. And then we go to the volume. In volume, what we have? Example number 7. कुछ बच्चे एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना. जब एनसीईआरटी पढ़ते हो, दैट मीन्स एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स, एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स.
पेज नंबर 248, क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन वाला. इट्स रियली sweet question because it's gulab jamun and it's very important also. Start it. Question number 5, question number 6 and question number 7. Okay, then we go to the next exercise. Okay, conversion. एक को मेल्ट करके दूसरी चीज में चेंज करना, एक शेप से दूसरी शेप बनाना, conversion. That is 13.3, question number 3, 4, 5. Take it. And question number 8 and 9. बस यहीं तक करना है चैप्टर नंबर 13 बिकॉज आगे क्या है, आगे तो सब रिमूव्ड है. दैट्स गुड, इजी हो गया आपके लिए. So here we are with statistics, chapter number 14, very important chapter and it's not difficult really because it is completely datas. Okay, just play with numbers. Okay, तो याद रखना है यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं आप गलत कर सकते. कैलकुलेशन जैसे ही गलत हुई सारा क्वेश्चन गलत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट पेज नंबर 270. ये चैप्टर क्या है, मीन मोड मीडियन. इफ आई टॉक अबाउट मीन के अंदर यहाँ पे 3 मेथड्स गिवन है जिसमें से एक मेथड आपका स्टेप डेविएशन सिलेबस से क्रॉस हो गया. ओके, 14.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 5. Okay, 7. Take it. ये पॉइंट्स में देख के ये मत समझना कि डिफिकल्ट है. इट्स क्वाइट सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें. क्वेश्चन नंबर 9. These are very important questions. Then go to example number 4. After that, now we are talking about mode. Mode is very important. Mode एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपको अच्छे से आना चाहिए. एक ही फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मोड निकालने में. बस फॉर्मूला में कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है उसको अच्छे से माइंड में रखना है. देन वी गो टू 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 and 3 and next is question number 6. Then we go for the median. मीडियन के लिए आगे चलते हैं. मीडियन और मोड के डिफरेंस को अच्छे से समझ लेना. मॉडल क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास क्या होती है, इस चीज में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो क्लियर दैट, यहीं पे हम बात कर रहे हैं. देखो मीडियन क्लास अलग चीज है. मोड निकालते हैं तो मॉडल क्लास निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं मीडियन क्लास निकालते हैं. सो कीप दैट इन माइंड. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8, मीडियन वाला. ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है एक्स और वाई. ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन वाले में भी ऐसा है जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस फॉर्मूला, डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला. ओके, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल रिलेशनशिप. नाम भी याद रखना है. ओके, एंड नेक्स्ट वी गो टू 14.3 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7. एंड आफ्टर दैट देयर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. वो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है. नेक्स्ट वी गो टू द चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी. चैप्टर नंबर 15 जो प्रोबेबिलिटी, बहुत इजी चैप्टर है, बच्चों को बहुत अच्छे से आता है. लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, वैसे तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें ना एनसीईआरटी में थोड़े से क्वेश्चन कम आते हैं. दिस इज फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला सबको आना चाहिए, बेसिक सबको अच्छे से आने चाहिए. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी में फिर भी कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं. मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की थोड़ी ज्यादा वैल्यू है. ये भी एक फॉर्मूला PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. 1 मार्क के क्वेश्चन से बहुत आता है. नेक्स्ट, ये भी नॉलेज होनी चाहिए दैट प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1. दिस क्वेश्चन कार्ड्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल नंबर 4, टिक एग्जाम्पल नंबर 4. देन वी गो टू द एग्जाम्पल नंबर 8. ओके, एंड नेक्स्ट वी गो टू द एक्सरसाइज. ओके, सो एक्सरसाइज में क्या है देखते हैं. एक तो बात ये, जितने भी फिलअप्स है ना इनको अच्छे से बहुत डीपली समझ लेना है. क्यों? बिकॉज ये फिलअप्स है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क में. देन टिक क्वेश्चन नंबर 5, इवन स्टार इट. क्वेश्चन नंबर 7, स्टार इट. ये क्वेश्चन आप समझो आना ही आना है. ये क्वेश्चन इन द सेंस
इससे बिल्कुल सेम या फिर मिलता जुलता, जहाँ पे टर्म्स थोड़ी बहुत चेंज हो जाए. Then we go to question number 8, 9 and 13, 14, 16. Start it please. 17. And then the last question 21. Okay, chapter is complete. We have completed the series of important questions from NCERT. तो ये थे हमारे important questions of NCERT's last video. So this series has been completed here, but don't worry, I'm with you and I'm coming with important questions from previous papers, chapter wise. So stay tuned with me, and if you have not subscribed my channel, just subscribe the channel because I'm with you till the exam day. Bye, take care and happy learning.